Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about Bipin Chaudhary's Lapse of Memory chapter number, and this chapter already we had discussed in previous 3 parts that already published, so that those who hadn't seen that video, firstly go and watch that video so that you can understand what is there, what is the story, what is the exact meaning of this lesson. Now today we will going to discuss about part number 4. Okay, part number 4. In the previous part we were discuss about the lapse memory of Bipin Chaudhary. Once the nearby friends of him were told to him that once he was visited to the Ranchi, and that memory he hadn't remember in his mind. He consult one doctor. In spite of that, he didn't get any idea that what he has to do. Okay, till that we have to study. Okay, so in our next number 4 video, we will discuss further. Getting up. Wait a minute. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. Next morning, whenever he getting off means उतरते हुए, whenever he getting off from the train, okay, जब वो ट्रेन से उतर रहे थे, at that time he experience, उसको realize हुआ कि उसने कभी भी पहले रांची नहीं आया था. He had never been there before. He didn't have remember about that. He came out of the station, and after that he came out of the station से बाहर आता है, took a taxi and draw around the town for a while. Okay, टैक्सी लेकर वो जो टाउन था बराबर है उसके वहाँ पे वो घूमा. He was moving around the town to उसको कुछ भी याद आ जाए. He was trying to get a little bit of memory from that place. Okay, he realized that the streets and the buildings and the hotels and the bazaars and the Murabadi Hill, with none of these had the slightest acquaintance. उसको experience हुआ. Whenever he move around to the town, he experienced that जो वहाँ के जो रास्ते थे, वहाँ की जो होटल थी, वहाँ का जो बाज़ार था, वहाँ की जितनी मुराबादी हिल जो थी, वो सब जरा भी उसको एक्सपीरियंस नहीं था. मतलब ही हैडेंट वॉच दैट काइंड ऑफ द एटमॉस्फियर बिफोर. तो उसको लग रहा था कि मैंने कभी भी बिफोर दैट आई हैडेंट विजिटेड दिस प्लेस. वुड अ ट्रिप टू अ हुड्रो फॉल्स हेल्प. शायद उसको लगा कि हुड्रो फॉल्स जो है वहाँ मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ हेल्प मिलेगी. Probably I will get the idea about the my previous visit of this place. Okay, so that he decided to went there. He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. Okay, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं था. He didn't believe means he didn't उसको कुछ भी तरीके से विश्वास नहीं आ रहा था. फिर भी उसने ट्राई किया कि वो वहाँ पे जाए, शायद उसको कुछ याद आ जाए. सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर अ हुड्रो. को कुछ याद आ जाए ऐसी होप के साथ वो वहाँ पे जाता है. आगे क्या होता है, what will be further? At 5 o'clock the same afternoon in Hudro, two Gujarati gentlemen from a group of the picnickers discovered Bipin Babu laying the unconscious beside a boulder. अब दोपहर का टाइम था, लगभग एट द टाइम ऑफ द 5 o'clock. ओके, शाम के 5 बजे थे, दोपहर के 5 बजे थे. तो वहाँ पे पिकनिक के लिए फॉर द पिकनिक वन ग्रुप वॉज केम फ्रॉम गुजराती. ओके, तो कुछ लोग थे जिन्होंने बिपिन बाबू को बोल्डर के पास, मतलब बेहोश की हबे, अनकॉन्शियस दैट मीन्स बेहोश, बराबर जिसको होश नहीं होता है दैट इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियस. तो कुछ लोगों ने उसको अनकॉन्शियस हालत में वहाँ पे पाया. उनको लगा कि कोई पर्सन जो है ही वॉज लेइंग आउट देयर इन अनकॉन्शियस सिचुएशन. सो दिस काइंड ऑफ द सिचुएशंस वर देयर. ओके,
1 minute. Okay, when he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there is no hope left. Okay, जब बिपिन बाबू के वो लोग पास में गए, उसको जब होश आया तो बिपिन बाबू ने क्या कहा कि अब मैं फिनिश्ड हो गया हूँ, आई वॉज फिनिश्ड, जस्ट मैं ख़त्म हो गया हूँ और मुझे कोई भी उम्मीद नहीं बची है। मतलब आई डिडेंट हैव एनी होप टू लिव, बराबर मुझे ज़िंदा रहने की किसी भी तरीके की कोई भी उम्मीद अब नहीं है। that there was a truly no hope for him. Next day he went to again, okay, he went back to the कलकत्ता, और वह कलकत्ता वापस आ जाते हैं और उसको रियलाइज़ होता है there was a truly no hope for him, उनके कोई भी उम्मीद नहीं होती है कि भाई वो ठीक होंगे या उनको कुछ याद आएगा। this kind of the hope he didn't have right now. Soon he would lose everything, he will to work, sorry, everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind, वो सब कुछ खो चुके थे। कोई भी तरीके की उम्मीद उसको नहीं रही थी। ही विल टू वर्क, उसको काम करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। उसका कॉन्फिडेंस वो खो चुके थे। अपनी एबिलिटी ही ऑल्सो लॉस्ट, और बैलेंस ऑफ माइंड ही ऑल्सो लॉस्ट। मतलब जो भी उनको कॉन्फिडेंस देता था वो सारी चीज़ें उनके दिमाग से चल चुकी थी। मतलब कि वो किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ लाइफ में अब आगे कर सके। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन टू द एजलियम एट बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। बिपिन बाबू ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे थे क्योंकि वो एक अपनी मानसिक संतुलन को खो चुके हैं। बराबर है, बिपिन बाबू को कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। Back at home, he rang up to Dr. Chandra and asked him to come over. Whenever he returned to the home, after that he rang up. Rang up means उसने कॉल किया। किसको कॉल किया? डॉक्टर चंद्रा को कॉल किया और उसने उसको रिक्वेस्ट की। ओके, he asked him to come over, कि वो वहाँ पे आ जाए और उनको मिलना था उनके। Then after a shower, फिर उन्होंने क्या किया? शावर लिया, मतलब नहाया। He got into the bed with a ice bag clamped on his head. उन्होंने आइस बैग जो है वो अपने had left in the letter box। ठीक है, उसके बाद एक नौकर वहाँ पे आया और एक लेटर लेके आता है। ओके, वो लेटर कोई बॉक्स में, लेटर बॉक्स के अंदर कोई छोड़ के गया था। someone left that letter into the letter box for him। ओके, the greenish envelope, वो जो एनवलप था वो कैसा था? ग्रीन कलर का था, हरे रंग का था, ग्रीनिश एनवलप था। और उसके अंदर विथ हिज नेम इनटू द रेड इंक ऑन इट, और रेड इंक से उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? दैट ही डिडंट नो। अब एनवलप खोलेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके, तो ही वॉज ट्राइंग टू ओपन द एनवलप। यहाँ पे यू कैन सी दैट बिपिन बाबू इज लेइंग डाउन इनटू द बेड एंड द सर्वेंट केम विद द लेटर, एंड वो जो है वो लेटर उसको देता है। अबाउट द नेम इट इज़ सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और वहाँ पे उसके ऊपर क्या लिखा था? अर्जेंट। अर्जेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, एंड कॉन्फिडेंशियल मतलब किसी को ना पता चले, ऐसा एकदम गुप्त तरीके से ये लेटर था। In spite of his condition, Bipin Babu had feeling that ought to go through the letter। इतनी ख़राब उनकी कंडीशन थी, इन स्पाइट ऑफ दैट उनको लगा कि मुझे ये लेटर को पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope and took out of the letter, this is what he read। बराबर है, उन्होंने उसको रैप को फाड़ दिया और उसको वहाँ पे फाड़ने के बाद उसको एनुअल लेटर को खोला और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो यहाँ पे दिया हुआ है। द लेटर इज गिवन हियर। व्हाट इज देयर? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन दिस लेटर? डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया अफ्लुएंस वुड बीइंग अबाउट काइंड ऑफ द चेंज इन यू, व्हाट इज इट डन? उससे आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे। What it's so difficult for you to help out an old friend down on his luck।
ओके। मैंने ऐसा किया है कि आपके एक जो पुराने फ्रेंड थे, बराबर है, जिसका जो लक था वो ख़राब हो रहा था, बराबर है, डाउन हिज लक, मतलब इसका हिज लक वॉज गेटिंग डाउन, उसका लक जो था वो ख़राब हो रहा था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। सो माई रिसोर्सिस आर लिमिटेड, वॉट आई वॉज इमेजिनेशन, a part of which I used to the distribution of your unfeeling behavior। ओके, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास किसी भी तरीके का ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे मैं पैसे कमा सकूं। मेरे पास जो कुछ भी है वो क्या है, इमेजिनेशन है, और जिससे मैंने आपके व्यवहार को बदलने के लिए मैंने ये एक्सपीरियंस यूज़ किया है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, आप फिर से ठीक हो जाओगे। A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it though enough, it will see me through the next few months। और लास्ट में क्या लिखा था कि आप सही हो जाओगे। और मैंने एक नॉवेल लिखी है जिसके अंदर मैंने एक पब्लिशर जो है उसको, एक पब्लिशर जो है वो एकदम विचार, मतलब जो ज़रा भी सोचे नहीं ऐसा है, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आ गया, तो मैंने उस तरीके से मैंने उसको काम किया। तो इसके मेरे पास जो कुछ है वो इमेजिनेशन है, ठीक है, और मुझे इस तरीके से आपके साथ जो कुछ भी मुझे लगा तो उस हिसाब से मैंने आपके साथ किया है। और यदि ये आपका अगर आप इसको पब्लिश करते हो तो यार चुनीलाल लिखते हैं। व्हेन डॉक्टर चंद्रा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, इट केम बैक एज सुन एज आई विल गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। जैसे ही वो डॉक्टर चंद्रा आते हैं तो बिपिन बाबू उनको क्या कहते हैं, मैं कंप्लीट हो गया हूँ, मैं अच्छा हो गया, मुझे सब कुछ याद आ गया है, अब मैं रांची ट्रेन से उतर रहा था। अ यूनिक केस से डॉक्टर चंद्रा कहते हैं ये तो एक यूनिक केस हो गया। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन अ मेडिकल जर्नल, और मैं इसके बारे में मेडिकल जर्नल में लिखूंगी। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन माई हिप फ्रॉम द फॉल आई हैड रांची, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइबेबल पेन किलर। तो लास्ट में वो क्या कहते हैं कि मैं जब रांची में गया था तो वो मैं कहीं जाने से मैं गिर गया था, तो मुझे पीछे हिप्स के अंदर कुछ दर्द हो रहा है, आपके पास कोई पेन किलर हो तो मुझे दीजिए, ऐसा बिपिन बाबू लास्ट में कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था लेसन। ओके, दिस इज़ द लेसन अबाउट बिपिन चौधरीज लैप्स मेमोरी। एट लास्ट उसकी मेमोरी जो है वो शार्पली वापस आ जाती है आफ्टर रीडिंग द लेटर ऑफ चुन्नीलाल। ओके, so this is very interesting lesson. I hope you guys will enjoy and understood about this lesson. Regarding this video, regarding this part, whatever the PDF is there that I will send you through question answers, okay, that you have to write down in your notebook. In our next video we will discuss about the next lesson, new chapter. Okay, bye.